Hello children, we are reading chapter Share Capital from part B in accountancy. Today I will again revise some previous topics and after that I will explain other topics. So let's start. Earlier I have explained the meaning of company. A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business. Commercial, industrial enterprise are called a company. Characteristics: incorporation, legal entity, artificial person, common seal, limited liability, etc. Kinds of company are three types: OPC, one person company, private company, and public company. Share, the meaning of share is referred to as a unit of ownership in a company. Shareholder, the owner of share in the company is a shareholder. Next, share capital is the money a company raises by issuing the shares. Characterized of share capital: authorized capital means registered capital, issued capital. Note another part: these topics already I have explained, like authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, and uncalled capital, reserve capital. And also I have explained a numerical question in your NCERT book. Again I will explain that question again. Children, already I have explained this example. Again I will revise this. Let us take the following example and show how the share capital will be shown in the balance sheet. Sunrise Company Limited, New Delhi has registered its capital as rupees 40 lakh divided into 4 lakh share of rupees 10 each. The company offered to the public for subscription 2 lakh share of rupees 10 each, 2 rupees on application, 3 rupees on allotment, 3 on first call and balance on final call. The company received application for 2,50,000 share. The company finalized the allotment on 2 lakh shares and rejected applications for 50,000 share. The company did not make the final call. The company received all the amount except on 2,000 share where call money has not been received. The above amounts will be shown in the notes to account of the balance sheet of Sunrise Company Limited as follow. So in this question सनराइज कंपनी ने अपनी कंपनी की जो रजिस्टर्ड कैपिटल थी वो शो की 40 लाख रुपीस, जिसके लिए उसने अपनी कंपनी को 4 लाख शेयर में डिवाइड कर दिया और वहाँ पर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ रखी। इसके बाद कंपनी ने 4 लाख शेयर में से 2 लाख शेयर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है और इसके बाद 10 रुपीज़ की जो वैल्यू है उसके लिए कंपनी ने इंस्टॉलमेंट बनाई। 2 रुपीज़ वो एप्लीकेशन पर ले रहा है, 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट है और 3 रुपीज़ की फर्स्ट और लास्ट है बैलेंस अमाउंट। कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, 2,50,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, लेकिन उसने 2 लाख एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और बाकी 50,000 की जो एप्लीकेशंस थी उनको रिजेक्ट किया। कंपनी में सभी पैसा उसको मिला है, डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। कंपनी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये कॉल जो है कंपनी रिसीव कर चुकी है और एक लास्ट फाइनल कॉल है जो कंपनी ने अभी रिसीव नहीं की, जिस कंपनी की तरफ से अभी शेयर होल्डर्स को ये कॉल नहीं की गई। अब कंपनी सिर्फ 3 कॉल की जो अमाउंट है वो कलेक्ट कर रही है। द कंपनी रिसीव ऑल द अमाउंट एक्सेप्ट ऑन 2,000 शेयर वेयर कॉल मनी हैज़ नॉट बीन रिसीव। अब यहाँ पर कंपनी कह रही है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास मेरे 2,000 शेयर थे और जिसने मुझे कॉल मनी पे नहीं की। तो जो पैसे हमें नहीं मिलते हैं उसके लिए हम कॉल इन एरियर वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ये सारी डिटेल की बैलेंस शीट बनानी है और नोट टू अकाउंट में इसको शो करना है। तो यहाँ पर नोट टू अकाउंट, सबसे पहले नोट टू अकाउंट्स का मतलब है डिटेल करना है कि पैसे कैसे कैसे आपने रिसीव किए। शेयर कैपिटल ये हेड है, ये सब हेड है इसका। शेयर कैपिटल, ऑथोराइज और रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल तीनों एक ही जैसे हैं। 4 लाख कंपनी ने अपने शेयर बनाए, 10 रुपीज़ का एक था, तो 40 लाख की जो कंपनी की रजिस्टर्ड वैल्यू यहाँ पर है। इशूड कैपिटल, अब 4 लाख शेयर में से कंपनी ने केवल 2 लाख शेयर जो है वो इशू कर रही है जिसके लिए उसको 20 लाख रुपीज़ रिसीव
होंगे कस्टमर्स जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से। सब्सक्राइब कैपिटल, आपने तो 2 लाख शेयर इशू किए सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन कितने लोगों ने वहाँ पर सब्सक्रिप्शन किया? 2 लाख शेयर 10 ईच, सभी लोगों ने शेयर खरीदे और यूज़ किया। 8 कॉल्ड अप, आपने कहा कि फाइनल कॉल अभी कंपनी की तरफ से नहीं की गई है, तो 2 लाख शेयर पर 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 16 लाख रुपीज़ कंपनी को यहाँ पर रिसीव होने वाले हैं। कॉल्स इन एरियर, वहाँ पर बताया था कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास हमारे 2000 शेयर हैं और जिसने हमें फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की कॉल की पेमेंट नहीं की, तो वो हमारी लेस हो जाएंगी और उसको हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर। तो 16 लाख रुपीज़ हमें रिसीव होने थे 2 लाख शेयर पर 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन 6000 जो है वो हमें रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब 15,94,000 हमें रिसीव हुए। नेचर क्लासेस ऑफ शेयर्स, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो शेयर्स हैं उनके कितने टाइप्स हैं। शेयर्स रेफर टू द यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। अ शेयर इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी। द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी थ्रू शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर। कंपनी में जो आदमी शेयर्स खरीदता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, और जो पार्ट वो खरीद रहा है, जो ऑनरशिप वो खरीद रहा है, उसको हम कहते हैं शेयर। द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल टुगेदर विद द नंबर ऑफ शेयर in which it is divided. It is stated in the memorandum of association, but the classes of share in which the company's capital is to be divided, along with their respective right and obligation, are prescribed by the article of association of the company. As per the Company Act, a company can issue 2 types of share, preference share and equity share, also called ordinary शेयर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 1956 और 2013 में कंपनी केवल 2 तरह से अपने जो है शेयर्स इशू करती है, 2 टाइप शेयर इशू करती है। फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर और सेकंड इक्विटी शेयर, और जिसे हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर। According to Section 43 of the Company Act 2013, a preference share is one which fulfills the following conditions. Preference shareholders केवल वही है जो इन 2 कंडीशंस को फॉलो करता है। फर्स्ट, दैट इज कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड टू बी पेड ईदर एज अ फिक्स अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर or an amount calculated by a fixed rate of nominal value of each share before any dividend is paid to the equity shareholder। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के लिए 2 कंडीशंस अप्लाइड होती हैं कंपनी की तरफ से। पहला ये कि जब भी कंपनी को कोई भी डिविडेंड का मतलब है यहाँ पर प्रॉफिट, कि कंपनी को जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले वहाँ पर प्रॉफिट किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसमें से जो रेट है, जो फिक्स रेट है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकेंड यहाँ पर कंडीशन है दैट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इट कैरी और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी द प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन कह रही है कि जब कंपनी शेयर होल्डर्स, जो उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको शेयर अगर बेचती है, उनकी ऑनरशिप कंपनी के अंदर है, और अगर कंपनी कभी वाइंडिंग अप की कंडीशंस या स्टेज पर पहुंच जाती है, ऐसा कभी होता है, तो कंपनी सबसे पहले कैपिटल वापस करेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास 2 राइट्स हैं। पहला कि कंपनी जो भी प्रॉफिट गेन करती है उसमें से डिविडेंड, प्रॉफिट को यहाँ पर कहा जा रहा है डिविडेंड, कि जो भी कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है, जो डिविडेंड उसको मिल रहा है, उसमें से सबसे पहले जो राइट है वो किसका है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। दूसरा यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट है कि अगर कंपनी कभी भी वाइंडिंग अप की स्टेज में पहुंचती है तो वहाँ पर वाइंडिंग अप होने पर कंपनी सबसे पहले कैपिटल रिटर्न करेगी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल, या फिर उनको कोई भी डिविडेंड यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर। According to Section 43 of the Companies Act 2013,
एंड इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज़ नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। देखिए, प्रेफरेंस शेयर का मतलब है प्रायोरिटी, कि कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो सबसे पहले वो कुछ जो उसके इन्वेस्टर हैं या उसके एम्प्लॉयज़ हैं या उसके कोई मैनेजमेंट है या कोई भी उसका क्रेडिटर है, तो सबसे पहले वो अपने कुछ लिमिटेड लोगों को प्रेफरेंस देती है और उनको ऑफर करती है कि आप चाहें तो हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके हमारी कंपनी में ऑनरशिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेंस एक तरह से प्रायोरिटी का काम कर रहा है कि कंपनी उनको शेयर बेचने के साथ साथ उनको इन्वेस्टमेंट कराने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने आप को भी सिक्योर करती है। दूसरी तरफ जो इक्विटी है, इक्विटी का मतलब है जो नॉर्मल जो हम पब्लिक है उनके लिए यहाँ पर इक्विटी शेयर्स का नाम यहाँ पर दिया गया है कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कंपनी के पास ये रूल होता है, कंपनी को ये कंपलसरी है करना कि जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो वहाँ पर उसको इन दोनों टाइप्स में कंपनी के शेयर को इशू करना कंपलसरी है कि आप उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू करना है या फिर इक्विटी। तो इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज़ नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर नहीं है क्योंकि इसके पास कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, कोई भी राइट इसके पास अभी नहीं है, ना ही डिविडेंड का कोई राइट है और ना ही इसके पास कैपिटल का राइट है। In other words, share which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital, कि ना ही इसको कंपनी की तरफ से अभी कोई सिक्योरिटी मिली है डिविडेंड के लिए और ना ही उसकी कैपिटल की रीपेमेंट के लिए। अ टर्म एज इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर, तो ये एक सिंपली ऑर्डिनरी शेयर्स की जो कैटेगरी है उसमें ये काउंट होते हैं। The equity shareholders are entitled to share the distributable profit of the company after satisfying the dividend right of preference shareholder, कि यहाँ पर कंपनी कह रही है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी डिविडेंड इकट्ठा कर रही है, तो वहाँ पर सबसे पहले डिविडेंड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको लेने का राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का नहीं। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर जो यहाँ पर डिविडेंड है देने के बाद अगर कोई डिविडेंड बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स एंड इट में, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिविडेंड है उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जबकि वहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए बताया गया था कि जब कंपनी डिविडेंड गेन करेगी तो एक फिक्स रेट से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ कंपनी का कमिटमेंट हुआ है उसी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग, फिक्स रेट के अकॉर्डिंग उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। Vary from year to year depending upon the amount of profit available for distribution. The equity share capital may be with voting right, with differential right as to voting, dividend and otherwise in accordance with such rules and subject to such conditions as may be prescribed. तो यहाँ पर जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वहाँ पर कंपनी उनको भी दो राइट दे रही है। फर्स्ट राइट है उनके पास कि विद वोटिंग राइट्स, कि वहाँ पर वो वोटिंग कर सकते हैं, कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड अफेयर्स हैं, जितने भी रिलेटेड मीटिंग्स हैं उनमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं अगर वो चाहें, और कंपनी के लिए वोटिंग राइट्स भी उनका अधिकार है। इसी के बाद इशू ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, कि कंपनी किस तरह से अपने शेयर्स को इशू करती है। फर्स्ट, द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसीजर ऑफ शेयर इशू आर इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट, कि सबसे पहले कंपनी को अपने इशू करने पड़ेंगे प्रोस्पेक्ट, कि जैसे हम स्कूल में किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक पैम्पलेट या एक प्रोस्पेक्ट जो है वो स्कूल या कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसको भी यहाँ पर एक इसी तरह का प्रोस्पेक्ट जो है वो इशू करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। The company first issue the prospect to the public. Prospect is an invitation to the public that a new company has come into existence and it need fund for doing business. It contains complete information about the company and the manner in which money is to be collected from the prospective investor. यहाँ पर कंपनी अपने जो प्रोस्पेक्ट्स है उसमें बता रही है कि कंपनी किस नाम से यहाँ पर स्टेबल हो रही है, कंपनी के अंदर कितनी एसेट्स वहाँ पर यूज़ होने वाली है, कंपनी का काम क्या होगा। तो ये जो भी कंपनी की एक डिटेल है वो सारी हमें कहाँ पर मिलेगी, उसके प्रोस्पेक्ट्स में। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, कि यहाँ पर उसके बाद जो कंपनी है वो एप्लीकेशन को रिसीव करती है। व्हेन प्रोस्पेक्ट इज इश्यू टू द पब्लिक, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर इंटेंडिंग टू सब्सक्राइब द शेयर कैपिटल ऑफ
Company would make an application along with the application money and deposit the same with the scheduled bank as specified in the prospectus. The company has to get minimum subscription within 120 days from the date of the issue of the prospectus. If the company fail to receive the same within the said period, the company cannot proceed for the allotment of shares and application money should be returned within 130 days of the date of issue of prospectus. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी सबसे पहले अपने जो प्रोस्पेक्टस है उनको इशू करेगी। सेकंड, वहाँ पर उसका काम है कि जितनी भी एप्लीकेशन उसको रिसीव हो रही है उन एप्लीकेशंस को वो रिसीव करेगी और एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो टाइम है वो वहाँ पर फिक्स करेगी, जिसके लिए वहाँ पर बताया है द कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, कि जब से यहाँ पर कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया था उससे उस डेट से लेकर के 120 डेज तक कंपनी के पास कोई भी शेयर होल्डर्स अपनी एप्लीकेशन को सेंड कर सकता है और अपने आप को सब्सक्राइब करा सकता है। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव द सेम विद इन द सेट पीरियड, जो कंपनी ने 120 डेज का टाइम एक सब्सक्राइबर को, एक शेयर होल्डर्स को दिया है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर वो उस टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाता है, अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, शेयर्स नहीं खरीद पाता है, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न विद इन 130 डेज। तो कंपनी अब 130 डेज के ड्यूरिंग पीरियड में ही उसकी जो अमाउंट आपने रिसीव की है एप्लीकेशन पर वो आपको वापस करनी पड़ेगी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसके बाद है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव द कंपनी में प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन अदर लीगल फॉर्मेलिटी। लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट आर सेंट टू दोज whom the shares have been allotted and letters to regret to those to whom no allotment has been made. When allotment is made, it results in a valid contract between the company and the applicants who no became the shareholder of the company. अलॉटमेंट का मतलब है बांटना, कि कंपनी ने सबसे पहले अपने जो प्रोस्पेक्टस थे उनको इशू किया, उसके बाद कंपनी के पास है एप्लीकेशन आ रही है, एप्लीकेशन आने के बाद सेलेक्ट करने के बाद कंपनी अब उनको शेयर्स जो है वो अलॉट कर रही है, मतलब बांट रही है। पर जो शेयर्स हैं उनको हम 3 कंडीशंस में कंपनी इशू करती है। एक होता है एट पार वैल्यू, इसका मतलब है कि अगर कंपनी ने अपने जो शेयर हैं उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ में ही वो आपको ऑफर कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये है आपकी एट पार वैल्यू। अगर 10 रुपये के शेयर को कंपनी 12 रुपये में बेच रही है तो इसका मतलब है एट प्रीमियम, तो 2 रुपीज़ का जहाँ वहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रीमियम। डिस्काउंट यहाँ पर यूज़ होता है कि अगर कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपीज़ का है लेकिन अभी कंपनी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है या उसके पास पैसे की इसको बहुत ज़्यादा नीड है या नई कंपनी है, तो इन सब कंडीशंस में कंपनी अपने जो शेयर हैं उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर देती है और कहती है कि मैं वहाँ पर 2 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दे रही हूँ, तो इसका मतलब 10 रुपीज़ के शेयर को कंपनी 8 रुपये में ऑफर कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर इशूड either at par or at a premium. Share are to be issued at par when their issue price is exactly equal to their nominal value, कि जो उसकी वैल्यू है उसी वैल्यू में कंपनी आपको शेयर इशू कर रही है तो वो उसकी एट पार वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ इशू, when the share of a company are issued more than its nominal value, face value, this is called premium, कि जब कंपनी आपका शेयर 10 रुपीज़ का है लेकिन वो आपको इशू कर रही है 12 रुपीज़ में, तो इसका मतलब 2 रुपीज़ उस पर प्रीमियम है। Irrespective of the fact that shares are issued at par or at premium, the share capital of company as stated earlier may be collected in installment payable at different stages. तो यहाँ पर जो कंपनी है अब वो पैसा जो है वो कलेक्ट करती है अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ऑन एप्लीकेशन, जब हमारी एप्लीकेशन कंपनी को मिलेगी तो वहाँ पर जनरल एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब अलॉटमेंट आएगा तो अलॉटमेंट पे यहाँ पर जनरल एंट्री पास होगी। इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मनी रिफंडेड, ये सारी जनरल एंट्रीज हैं, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ऑन कॉल्स। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल है ऑन कॉल्स, ये सब अभी हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पर,
इस क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है, मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, पेबल एट ₹30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने इशू किए अपने शेयर 12,000, जिसके लिए उसने एक शेयर की वैल्यू यहाँ पर फिक्स की ₹100, 20 on first call and balance on second and final call. Applications were received 13,000 share. The directors decided to reject application 1,000 share and their application money being refunded in full. The allotment money was duly received on all the shares and all sum due on call are received except on 100 share. Record the necessary general entry इन द बुक्स ऑफ मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में बताया गया कि मोना जो अर्थ मूवर लिमिटेड कंपनी थी उसने अपने शेयर इशू किए 12,000, 10 रुपीज़ के एक शेयर है, तो यहाँ पर कितने पैसे मिलेंगे इसको? 12 लाख रुपए रिसीव होंगे। 30 ऑन एप्लीकेशन, 12 3 जा 36, 3,60,000 रुपये इसको एप्लीकेशन में मिलेंगे। 40 उसके बाद 4,80,000 यहाँ पर मिलेंगे अलॉटमेंट के और 2,40,000 इसको मिलेंगे फर्स्ट कॉल पे। बैलेंस कितनी हो रही है यहाँ पर देखिए, ये कितना 10 रुपीज़ का बैलेंस अमाउंट है, तो 1,20,000 उसको मिलेगा फाइनल कॉल में, जिसके लिए उसने अभी कॉल नहीं किया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन मिली 13,000 शेयर की, तो इसका मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, जिसके लिए कंपनी ने 1,000 जो ओवर एप्लीकेशन थी उनको रिजेक्ट कर दिया और उसका पैसा भी वापस कर दिया गया कंपनी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर कंपनी बता रही है कि सभी शेयर होल्डर्स की तरफ से पूरा पैसा जो है वो मिल चुका है, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास हमारे 100 शेयर थे, जिसने हमें कॉल के पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंपनी ने अपने शेयर इशू किए 12,000, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो कंपनी को 12 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट बनाई। फर्स्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन पर जो कंपनी है वो 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मंगा रही है पैसे, तो 30 कितने शेयर है हमारे पास? 12,000, तो 3,60,000 की अमाउंट जो है वो कंपनी को एप्लीकेशन में मिलेगी। इसके बाद अलॉटमेंट 40 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, 12,000 शेयर है, तो 4,80,000 जो पैसे हैं वो रिसीव होंगे उसको अलॉटमेंट के टाइम पर। फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ की है और 2,40,000 यहाँ पर फर्स्ट कॉल के लिए मिलेंगे। फाइनल कॉल 1,20,000 यहाँ रिसीव होंगे, लेकिन जिसके लिए कंपनी की तरफ से अभी कोई कॉल नहीं की गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है कि बट कंपनी रिसीव 13,000 एप्लीकेशन, कंपनी ने इशू किए केवल 12,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 13,000। इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, कि जब जितनी एप्लीकेशन हमने इशू की, जितने शेयर हमने इशू किए, उससे ज़्यादा की अगर एप्लीकेशन मिलती है तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन बन जाता है। तो यहाँ पर कंपनी कह रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जो 1,000 ओवर एप्लीकेशन थी वहाँ पर 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज़ को हमने रिफंड कर दिया। उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की और पैसा भी रिफंड कर दिया गया। तो यहाँ पर अब हमें इन सब के लिए एक जनरल एंट्री जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कंपनी ने जनरल एंट्री पास की। बैंक अकाउंट डेबिट 3,19,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ऑन 13,000 शेयर, 30 पर शेयर रिसीव। कंपनी को 13,000 एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो रही है और एप्लीकेशन जो अमाउंट है वो 30 की है, तो 3,90,000 बैंक में जमा हुए, जिसमें से कंपनी ने जो ओवर वहाँ पर एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया और अपने पैसे जो थे वो एडजस्ट किए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो इस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन जो अब यहाँ पर एप्लीकेशन अगर है तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री बनेगी, एक बैंक के लिए और एक आपके लिए। 2 फर्स्ट कॉल के लिए होंगी और ऐसे ही 2 फाइनल कॉल के लिए होंगी। यहाँ पर सेकंड एंट्री अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अलॉटमेंट।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट एप्लीकेशन मनी ऑन 1,000 शेयर रिटर्न, कि हमारे पास ये ओवर मनी थी 30,000 जिसको हमने जो है वापस कर दिया। उसके बाद है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,80,000, कि अलॉटमेंट पे हमें कितने पैसे मिलने हैं, अलॉटमेंट पे हमें मिलेंगे 4,80,000। तो उसके लिए जनरल एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 480। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट 12,000 शेयर ₹40 पर शेयर। अब ये पैसे आप यहाँ पर बैंक में भेज रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 480 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2,40,000, यहाँ पर 2,40,000 हमें फर्स्ट कॉल के मिलेंगे, तो जिसके लिए जनरल एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 240 टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इस तरह से यहाँ पर जनरल एंट्री जो है ये आप प्रिपेयर करेंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो टेक केयर, गुड बाय।